apply करें different situations. So you can write first law of thermodynamics. पहले इसकी definition लिख लेते हैं, then we will apply it to different situations. लिखा तो नहीं था ना first law अभी, या लिख लिया था? First law of thermodynamics. So you can read. हमने लास्ट क्लास में लिखा था साइन कन्वेंशंस डीक्यू डीयू डीडब्ल्यू की और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा नहीं लिख लो इसको भी पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स it is law of conservation of energy in thermodynamical situations. It is law of conservation of energy in thermodynamical situations. Mathematically, it implies that heat energy, net heat energy exchanged between system and surroundings. Net heat energy exchanged between system and surroundings is always equal to the sum of change in internal energy and change in internal energy and sum of change in internal energy and work done. Change in internal energy and work done on के साथ on oblique by the system कर लो because they can be both the works done on or oblique by work done on or oblique by the system. There is PQ is equals to Q plus dW. Sign convention is very important as well. PQ के लिए क्या बताई थी? Heat added to the system positive या heat removed from the system positive? Added. Heat added to the system is positive. Heat removed from the system and when we write heat it's net heat मतलब net heat add किया या remove किया because simultaneously दो process भी हो सकते हैं कि हम add भी कर रहे हैं और remove भी कर रहे हैं so हमने net देखना है कि net add किया या remove किया. What about du? Du positive का हुआ negative का temperature बढ़ेगा तो internal energy बढ़ेगी temperature कम होगा तो internal energy कम हो जाएगी. So if temperature increases, du is positive. If temperature decreases, du is negative. Work done की chemistry से opposite. Work done by the system positive, on the system negative. By the system हम कब लेते हैं जब
एक्सपेंशन हो रही हो तो डेल्टा भी पॉजिटिव आ गया एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव मतलब कंप्रेशन इसमें नेगेटिव। अब इसको आप अलग अलग वे में इंटरप्रेट कर सकते हो फर्स्ट लॉ को। अगर मैं इसके स्पेशल केस करूं अगर मैं बोलूं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या होगा? फर्स्ट लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें DQ और DW में से क्या जीरो? DQ. So for adiabatic process, DQ is 0. अगर मैं DQ को 0 पुट कर दूं तो फर्स्ट लॉ implies DU plus DW is equals to 0. अब मेरे को बताओ इसको फिजिकली इसका मतलब क्या है? DU plus DW is equals to 0 क्या इंप्लाई कर रहा है? आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? अगर DU plus DW 0 है तो मैं इससे क्या कंक्लूड करूं? मैथ्स तो ठीक है, इक्वेशन बन गई DQ 0 है तो DU plus DW 0 होगा, बट दैट्स नॉट मैथ्स, फिजिक्स की क्लास है। तो इसका फिजिकली मतलब क्या हुआ? सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा भी कम होगा, नेगेटिव। उल्टा कर रहे हो आप। इसका फिजिकली मतलब है DU is equals to minus DW। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में? Expansion. एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है तो DU ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। मतलब एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन कूलिंग और हीटिंग, DU नेगेटिव है तो Cooling. cooling. So this basically implies कि expansion results in cooling, compression results in heating. Because compression करूंगा तो DW negative तो DU positive हो जाएगा, मतलब temperature बढ़ेगा. So adiabatic expansion results in cooling, adiabatic compression results in heating. कभी भी आप किसी चीज को adiabatically compress कर दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और adiabatic के लिए दो कंडीशंस क्या बताई थी? Insulated donor. And second, it should be fast. So you can write this implies that. Adiabatic expansion results in cooling. And adiabatic compression results in heating. तो अगर मैं isothermal process से लगाऊं, first law for isothermal process. Isothermal process कौन सा था जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, डेल्टा थीटा 0 है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा तो तीन क्वांटिटीज थी DU, DQ, DW, कौन सी 0 होगी? Delta U. DU. डेल्टा U 0 हो गया, मतलब first law implies that you can say for isothermal process DU is 0. अरे कब कितनी कंडीशन क्या की थी लास्ट टाइम? डेल्टा थीटा 0 है तो डेल्टा U 0 कब होगा? अगर Slow process. वो तो कंडीशन थी, मैंने कहा डेल्टा थीटा 0 होने से डेल्टा U हमेशा 0 होगा। मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि जब भी डेल्टा थीटा 0 है तो डेल्टा U 0 ही होगा। लास्ट में याद है हमने केस किया था बॉइलिंग और मेल्टिंग, Yes, तो sir. बॉइलिंग में डेल्टा थीटा तो 0 रहता है, बट डेल्टा U 0 नहीं रहता बिकॉज स्टेट चेंज हो रही है।
वाटर मैंने बताया था, अगर याद है, वाटर एट 100 डिग्री और स्टीम एट 100 डिग्री अलग अलग इंटरनल एनर्जी होगी। सो स्टेट चेंज के केस नहीं लेने, हम नॉर्मल ले रहे हैं कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, स्टेट इज नॉट चेंजिंग, गैस है तो गैस ही रहेगी, स्टेट चेंज नहीं कर रहे इसमें। तो डेल्टा थीटा 0 है तो du 0 आ जाएगा। अगर du 0 आ जाएगा इसका मतलब dq is equals to dw, implies जो भी हमने हीट एनर्जी दी दैट इज यूज्ड फॉर चेंजिंग डूइंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क ओनली, दैट इज एनर्जी। Energy is used for doing work only. क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट आता है, अब अगर मेरे को बताना है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वर्क डन क्या होगा। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी ड्राइव किया था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेंबर 2.303 nRT log V2 by V1, किया है केमिस्ट्री में ड्राइव। Yes. So Yes, same sir. derivation physics में भी है, right? Work done in isothermal process. Thermal process को वैसे शो कर सकते हैं। एरो डाल के टी लिखेंगे, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियली प्रेशर P1 है, ये स्टेट A, मैथमेटिकली तो हम ड्राइव कर लेंगे, ग्राफिकली वर्क डन इज Area under Area the under the graph. एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये एरिया, दिस इज द वर्क डन। सो हमने इसको मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला ड्राइव कर, सो यू कैन ड्रॉ दिस पे लिखते हैं। सर ये शेड करना है। हाँ कर सकते हो, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, या वैसे लिख सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन। We can write that. In isothermal process, in isothermal process, if there is no change of state, in isothermal process, if there is no change of state, change in internal energy will be zero. In work done is always equal to heat energy supplied. There is इसको ऐसे भी लिख वर्क डन के बाद क्या था सर? heat energy supplied.
if state of system changes from सर इस इक्वल के बाद रिपीट कर दो। उसके बाद तो बोर्ड पे ही लिख दिया। मेरे को बताओ इसमें एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है? इंटीग्रेशन बिकॉज ग्राफ से प्रेशर भी वेरी करता है और वॉल्यूम भी वेरी करता है। डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन आपको +1 +2 में नहीं सिखाते। हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए वी नो दैट आल्सो फॉर n moles of gas को ऐसे लिख सकता हूँ nRT/V। वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, अब वेरिएबल कितने हैं? एक बस n r और t तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया v और स्टेट चेंज कर रही थी v1 से v2, तो लिमिट्स डाल देंगे यहाँ पे v1 से v2। nRT कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपको इसी को इंटीग्रेट करना है dv/v की इंटीग्रेशन। dx over x is log x, so dv over v is log v, log to the base n. I can write this as इसको log to the base 10 में लेके जाओगे तो you have to multiply with 2.303। एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन आपने केमिस्ट्री में की होगी। मैं इसको प्रेशर की टर्म में भी लिख सकता हूँ। ऑल्सो हमें पता है P1 आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी P2 का P1 किसके इक्वल आ गया? So you can also write note down as V2/V1 की जगह you can also write P1/V2। दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। In terms of pressure, you can say it's again in terms of volume. So depending on हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, you can use any of the two formulas. इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता है हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम और कितनी हीट एनर्जी हमने सिस्टम को दी है या सिस्टम से रिमूव की और कितनी की है, या रिमूव की या कितनी ऐड की। एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ग्राफ से देखो इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन। expansion, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। but वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। क्लियर? एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, positive, वर्क डन पॉजिटिव, तो dq भी पॉजिटिव, और dq पॉजिटिव कब होता था? heat energy absorbed. heat Heat is absorbed, given to the system।
है ना, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, और बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो है नहीं, तो वर्क डन और हीट एनर्जी गिवन सेम ही होने चाहिए, तो यस यही फॉर्मूला हीट एनर्जी का भी होगा, मतलब दिस इज आल्सो हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। So whenever a system expand isothermally, heat energy given to the system is equal to work done. Whenever thermodynamical system compresses isothermally, work done is equal to heat energy removed. Compress करेंगे तो work भी negative, Q भी negative, और अगर हम expand करेंगे तो work भी positive और Q भी positive. Clear सबको ये point? तो इसको आपने नीचे लिखना है तो इसके नीचे लिख सकते हो. Can say in expansion. Equal to heat energy given to the system. In compression. No problem. तो isothermal की इक्वेशन तो हमने कर ली थी, PV is constant. बट एडियाबैटिक में हम कैसे करेंगे? जैसे आपको कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे कि हमने गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया ताकि उसका टेम्परेचर डबल हो गया, तो वॉल्यूम कितना कम किया, या हमने गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया उसका टेम्परेचर डबल हो गया तो प्रेशर में कितना चेंज आया. सो फॉर दैट यू रिक्वायर इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. जैसे आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने एडियाबैटिक की इक्वेशन देखनी है क्या बननी चाहिए. एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन अगर आपको डिराइव करनी है, दिस इज स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती थी, तो अगर टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. Equation for adiabatic process. It will need to come very often. Adiabatic process. dq0. dq0 dw is equals to minus du, and du plus dw is equal to 0. Same adiabatic process. No heat energy is exchanged. यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है सबको? dq 0 है तो du प्लस dw भी 0 ही होगा. अगर मैं आपसे बोलूं du को इन टर्म्स ऑफ cv लिखे तो हम क्या लिखते थे? du को इन टर्म्स ऑफ cv. du by CV dt is equal to CVDT. cvdt क्यों लिखते थे हम ऐसे? आपको लॉजिक समझ में आया? हम इसको लिख तो रहते, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो. स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ
sorry, energy required to increase the temperature of molar की अगर हम बात करें, 1 mole of substance through 1 degree Celsius. अब अगर मैं आगे ऐड कर देता हूं at constant volume, तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर देता हूं तो मेरे को बताओ कि du, dq और dw में रिलेशन क्या बना आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सी टर्म जीरो हो गई DW AW dw जीरो हो गया dw जीरो हो गया तो मतलब dq is equals to du हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये बनेगी कंडीशन मैं कह रहा हूं अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज Cv तो अगर 1 मोल का टेम्परेचर dt बढ़ाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज CVDT Cv dt मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज Cv dt बढ़ाना है तो Cv dt इसलिए हम लेते हैं पर आइसोकोरिक प्रोसेस du is equal to Cv dt और ये जनरल फार्मूला होता है हमेशा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ बीच में लिख दूँ ये समझ में आया ना कैसे किया वैसे इसमें शो नहीं करना डेरिवेशन में इसे समझाने के लिए बताया कि Cv होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो अगर Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है जैसे Cv is molar specific heat मैं इसको लिख सकता हूँ Cv dt या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये इक्वेशन जो मैंने लिखी 1 मोल के लिए लिखी है या n मोल के लिए लिखी है 1 mole 1 मोल तुमको 1 मोल n मोल्स होते तो इसको क्या कर देता मैं NCVDT बिकॉज 1 मोल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है कि Cv है n मोल्स होते तो NCV हो जाती सो फॉर 1 मोल मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो PV is equal to RT मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पहले तो राइट हैंड साइड बताओ क्या आ जाएगी R कांस्टेंट है वेरिएबल है constant कांस्टेंट है तो Constant. dt by dt will be 1 1 One. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है R. R इस साइड को फिर जब डिफरेंशिएट करोगे तो मैं इसको लिखूंगा P into differentiation of V plus V into differentiation of P मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ तक देखो पहले समझ में आया कैसे लिखा क्लियर है ये सबको तो Yes, dt डाउट है कोई dt किसके इक्वल आया था ठीक इसको करता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन समझ लो मैं कॉपी करने के लिए दे दूंगा टाइम इसको कर देते हैं first अगर ये dt की वैल्यू इधर डाल दें सब्स्टिट्यूट 2 in 1 ये जो ऐसी चीजें होती है ना थोड़ा सा रट्टा होता है कि आपको एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या करना है वो सॉर्ट ऑफ रट्टा ही मानना पड़ेगा इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है कि मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ वो मेथड है डेरिवेशन करने का तो वो तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा substitute 2 in 1 you get Cv dt को you can write as
किस साइड है सीवी ठीक है यहाँ तक। अगर मैं पीडीवी को कॉमन लूं तो क्या आया सी प्लस आर इज CP. सीपी बिकॉज सीपी माइनस सीवी इज आर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सीपी पीडीवी प्लस सीवी बीडीवी। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर कैंसिल हो गया सीपी बाय सीवी इज गामा। एक्सक्यूज मी सर। पहले मैथ्स देख लो अगर किसी स्टेप में नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल मैथ्स है, मतलब ऐसा कुछ भी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये सब्स्टिट्यूट 2 in 1 के बाद थर्ड स्टेप बता दो। ये वाला यस सर। ये फर्स्ट टर्म क्या है देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पीवी इंटू पीडी। ये क्या है आर इंटू पीडीवी, तो पीडीवी कॉमन है, ओके सर। पीडीवी को कॉमन लिया तो वो आ गया सीवी प्लस आर और सीवी पीडीवी, ये टर्म अलग लिखती, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इंटीग्रेशन करता हूँ डीवी बाई डी की इंटीग्रेशन log b, dp बाई b की इंटीग्रेशन log b और जीरो की इंटीग्रेशन मैं लिमिट्स नहीं ले रहा अभी कुछ। अगर मैं लिमिट्स नहीं लेता तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग। जब हम लिमिट्स नहीं लेते थे तो हम क्या करते थे log b constant of integration ऐड करते थे gamma log b, this can be written as log b raised to power gamma log की प्रॉपर्टीज आती हैं या नहीं आती हैं। मतलब यहाँ पे मैंने जो log की प्रॉपर्टी यूज किया दैट इज n log x जब होता है तो आप लिख सकते हो log x raised to power n, log x plus log y, इसको आप लिख सकते हो log x y। तो इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिख दिया मैंने log x plus log y is log xy एंड इधर गामा को ऊपर लेकर log e raised to power। इसका एंटी लॉग लेगा दूंगा तो क्या आएगा एंटी लॉग लोगे तो लॉग हट जाएगा, you will get the equation pv raised to power gamma is constant because constant का एंटी लॉग भी constant ही होगा। This is very important equation है पूरे यूनिट में। टर्म 1 अगर टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव हुआ कि इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिक्स। pv raised to power gamma is constant। देखो अब नोट करनी है तो पहले कर लो फिर मेरे से पूछ लेना। सर ये कुछ नहीं। एंटी लॉग लिया। हाँ सर ये लास्ट स्टेप में एंटी लॉग कैसे लिया। एंटी लॉग का मतलब होता है कि लॉग जब भी हटाना होता है ना हमारे पास जैसे कुछ भी है ऐसे log x is equals to 2 मान लो, तो जब मैं एंटी लॉग लूंगा ये लॉग हट जाएगा तो ये आ जाएगा x is equals to एंटी लॉग ऑफ 2।
तो मैंने यहाँ पे जब log PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट था, मैंने एंटी लॉग लिया तो ये लॉग हट जाएगा, तो कांस्टेंट का एंटी लॉग भी कांस्टेंट ही होता है, तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके सर। आपको शायद केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉग टेबल देखना सिखाया होगा मेरे ख्याल से, यस सर। जब Yes, उसमें sir. लॉग के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, फिजिक्स में तो लॉग टेबल रिक्वायर्ड नहीं होता कभी, बिकॉज एमसीक्यूज में अगर इसका न्यूमेरिकल भी आएगा ना, जो हमने ये वाली डेरिवेशन की थी, ये अगर कभी आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आया और ये log p1/p2 मान लो 7 आ रहा है, तो वो log 7 की वैल्यू दे देते हैं कि log 7 इज इक्वल टू दिस, तो आपको log टेबल देखना नहीं पड़ता कभी, इसको नोट कर लो एंड देन वी विल डू इसके आगे इसको यूज कैसे करना है, पहले इसको नोट कर लो, यहाँ तक हो जाए तो बता देना, देन आई विल स्क्रॉल इट। यहाँ तक नोट कर लो तो बताना, सुबह एक स्क्रॉल। सर कर दो स्क्रॉल। pressure volume equation for adiabatic process.
नोट ये प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन। मैं अगर इसमें आपसे पूछूं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन क्या होगा, इसी प्रोसेस में एडियाबैटिक है। एक बार जब प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन आ जाती है तो बाकी टर्म रिलेटिवली आसान होती है। You know that adiabatic process मैंने आपसे कहा टेम्परेचर वॉल्यूम, तो क्या एलिमिनेट कर दें प्रेशर को? प्रेशर को टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है अगर गैस के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन क्या बनी थी? This can be written as कांस्टेंट अपॉन एनआर क्या होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो सीधा ऐसे ही लिख सकते हो टीवी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन आता है। एक इक्वेशन की टीवी रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, अनदर इज टीवी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो तीसरी बनेगी प्रेशर टेम्परेचर, तो अब वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास है अगेन एडियाबैटिक, बेस इक्वेशन सेम है हमारी। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ बताओ इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन क्या बनी? p raised to power 1 minus gamma t raised to power gamma is 1. This is the equation. t raised to power 1 minus gamma t raised to power gamma is constant. तो आपको ये तीनों इक्वेशंस याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगी। Adiabatic, PV raised to power gamma is constant. इस पेपर में सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, रट्टा लगा होना चाहिए एमसीक्यूज करने हैं तो। PV raised to power gamma minus 1, PV raised to power gamma is constant, PV raised to power gamma minus 1 is constant, और P raised to power 1 minus gamma, T raised to power gamma is constant. अब देखो यहाँ से भी प्रूव कर सकते थे, हमने पहले क्या कहा था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। अगर मेरे को उसको प्रूव करना है तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन चाहिए मेरे को। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, PV raised to power gamma minus 1 is constant, तो T2 किसके इक्वल आ गया? अगर एक्सपैंड कर रहा है तो आप शो कर सकते हो T2 T1 से कम ही होगा, अगर एक्सपैंड कर रहा है तो।
अगर एक्सपैंड कर रहा है तो V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1 है तो ये जो पूरी वैल्यू है इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? less than 1. less than less than 1. तो T2 will be less than T1. yes Because T1 multiplied by some value which is less than 1. तो आप यहाँ से ऐसे भी सोच सकते थे, बट वो दूसरा मेथड जो वो सीधा फर्स्ट लॉ से आ रहा है कि dq is equals to du. अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास दो गैसेस हैं, एक मोनोटॉमिक है, एक डायटॉमिक, दोनों की इनिशियल स्टेट सेम थी। दो अलग अलग गैसेस हैं एंड सेम, दोनों की इनिशियल स्टेट सेम थी, मतलब दोनों के लिए इनिशियली प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। मैंने इनको एक्सपैंड किया एडियाबैटिकली। P वॉल्यूम V। पहले से सिर्फ ये बताओ कि इन दोनों का प्रेशर वॉल्यूम कर्व आइडेंटिकल होगा या अलग अलग बने, मतलब ऐसे एक ही ग्राफ होगा या ऐसे दो ग्राफ होंगे? अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है तो मान लो ये P2 स्टेट है P2 V2 और ये है P3 V2। ऐसे दो बने या दोनों की फाइनल स्टेट भी सेम होगी अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है? ऐसे B और B डैश दो पॉइंट अलग बनेंगे, अलग कर्व अलग अलग कर्व बनेगा। क्यों? गामा डिफरेंट है गामा डिफरेंट है। गामा डिफरेंट है इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, फॉर अ गिवन चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर अलग अलग आएगा फाइनल प्रेशर, बिकॉज अगर मैं लेता हूं PV रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट, तो जो P2 है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गामा, है ना? सॉरी, P2 is गामा डिफरेंट है तो फाइनल प्रेशर अलग अलग आएगा। मैं आपसे पूछूं, इनमें से मोनोटॉमिक कौन सी और डायटॉमिक कौन सी? दो कर्व बनाए फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से मोनोटॉमिक का ग्राफ कौन सा और डायटॉमिक का कौन सा? कैसे पता चलेगा आपको? मतलब अलग अलग तरीके से एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ना। They can say for a given change in volume, given change in volume मतलब V2 minus change in pressure किसमें ज्यादा है? बिकॉज इसमें चेंज इन प्रेशर है P2 minus P1, इसमें P3 minus P1, तो ये P3 minus P1 ज्यादा है, पर ये मोनोटॉमिक के लिए है या डायटॉमिक के लिए? They can ask you वर्क डन किसमें ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्राफ देख के पता चल रहा है A to B वर्क डन ज्यादा है, A to B डैश वर्क डन ज्यादा है, एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा कब है? A to A B to B. A to B। तो अब मोनोटॉमिक के लिए A to B बन रहा है या डायटॉमिक के लिए A to B बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ मोनोटॉमिक है, कौन सा डायटॉमिक है? अगर मैं आपसे मैथ्स पूछूं, इनमें से स्लोप किसकी ज्यादा है? A to B dash A to B डैश की स्लोप ज्यादा है, वो ज्यादा इंक्लाइंड है ना? पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, दोनों की Negative. negative नेगेटिव स्लोप है और 2 की ज्यादा है। इतना क्लियर पहले सबको कि नेगेटिव स्लोप है, सेकंड कर्व की स्लोप ज्यादा है, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब अगर मैं स्लोप की बात करूं,
एक्स्ट्रा वॉल्यूम कर्व बनाया तो स्लोप इज dp by dv plus dy by dx को हम स्लोप कहते हैं for adiabatic process. ये कांस्टेंट मेरे को dp by dv निकालना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करूं या प्रेशर इस इक्वेशन को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मेरे को वॉल्यूम वॉल्यूम इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर दोगे बस d by dv तो चाहिए ही है कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 p into differentiation of v plus v raised to power gamma देखो इसी की वैल्यू निकालनी है dp by dv v raised to power gamma की डिफरेंशिएशन क्या होगी गामा गामा वी गामा -1 gamma minus 1 plus v raised to power gamma dp by dv v raised to power gamma dp by dv मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा dp by dv किसके इक्वल आ गया इसको अगर v raised to power gamma से डिवाइड कर दूं ये स्लोप आ गई गामा इज डायटोमिक के लिए मैं ट्राई पे जाते ही नहीं बस ट्राई में दो केस बताए थे इसमें क्या आएगा गामा डायटोमिक में 7/5 this is 1.69 है गामा किसका ज्यादा है मोनोटोमिक का मोनोटोमिक के लिए गामा ज्यादा है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा जिसके लिए गामा ज्यादा एट एनी इंस्टेंट गामा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है स्लोप ज्यादा किसकी थी फर्स्ट कर्व की सेकंड कर्व की सेकंड तो सेकंड मोनोटोमिक है या फर्स्ट मोनोटोमिक है सेकंड सेकंड तो ये मोनोटोमिक का कर्व है देखा है तो आपको गामा से पता चलता है किसकी स्लोप ज्यादा हो लार्जर द वैल्यू ऑफ गामा लार्जर विल बी द स्लोप सो आप इसको एज शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो you can say because slope is proportional to gamma slope for monatomic is more than slope for diatomic पॉलीटॉमिक मतलब डायटोमिक ट्रायटोमिक क्या भी जितने भी हैं सबके लिए स्लोप कम ही होगी सो पॉलीटॉमिक लिख दिया उसको मैंने मोनोडाई एंड पॉली समझ में आया क्या किया देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अगेन सबको याद रखना है रिजल्ट slope for adiabatic process is minus gamma b by b आइसोथर्मल होता तो सबकी स्लोप सेम ही आनी थी बिकॉज वो गामा पे डिपेंड नहीं करता आइसोथर्मल की इक्वेशन है पीवी इज इक्वल कांस्टेंट तो वो गामा पे डिपेंड नहीं करेगी पर एडियाबैटिक है तो स्लोप डिपेंड्स ऑन गामा कैन नोट दिस डाउन फॉर इसके आगे
We can write that. This is the adiabatic process. Slope decreases with atomicity. This adiabatic process, slope decreases with atomicity. Whereas in isothermal processes, slope will be same for mono, dia or triatomic gases, as it is independent of gamma. As it is independent of gamma. As it is independent of gamma. उसमें हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला 2.303 nRT log V2 by V1 या log P1 by V2. अगर मेरे को एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, एक्सपेंशन में वर्क डन इसमें पॉजिटिव होगा या इसमें एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा? एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव ही होता है. तो अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस भी लेता हूँ, गैस एक्सपैंड करेगा, अगेन बेसिक चीजें सेम है, एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन, बट इसमें वर्क डन बिकॉज स्लोप गामा पे डिपेंड कर रही है, तो वर्क डन भी गामा पे डिपेंड करेगा. अगर मैं एडिया पहले समझ लो, फिर देखते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो dq 0, तो dw किसके इक्वल आ गया? माइनस du के. अच्छा, फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस du can be written as minus NCV dt. So work done is गैस एक्सपैंड की, उसका टेम्परेचर चेंज किया T1 से T2. इसमें वेरिएबल कौन कितने हैं? इसमें वेरिएबल कितने हैं और कौन सा वेरिएबल है? If I write minus NCV dt, तो वेरिएबल कौन सा है? n वेरिएबल है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट. CV for a given gas कांस्टेंट ही होगी, जो भी है. मोनोटॉमिक है तो सबके लिए CV सेम ही होता है कि 3/2r. डायटोमिक है तो 5/2r, तो वो कांस्टेंट है. For a given gas n और CV तो कांस्टेंट है, मतलब एक टेम्परेचर ही वेरी करता है. टेम्परेचर वेरी करता है, मान लो T1 से T2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था. इंटीग्रेशन क्या होगी? T2 minus T1. वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सपैंड कर दिया गया गैस. T2 minus T1 पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव. मतलब T2 T1 से कम होना चाहिए. एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन कूलिंग. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख दूं NCV T1 minus T2. अब कई बार होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर नहीं दिया, उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया कि स्टेट चेंजेस फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, फिर वर्क डन क्या हो जाएगा? ये तो मैंने टेम्परेचर की टर्म्स में निकाल लिया. मेरे पास एक रिलेशन है Cp minus Cv is R. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दिया। ये क्या डिफरेंस, सीवी बाय सीवी इज gamma गामा गामा माइनस वन इज आर बाय सीवी। तो मैं सीवी को लिख सकता हूँ सीवी इज आर अपॉन गामा माइनस वन, तो कैसे गामा माइनस वन है। अगर ये वैल्यू मैं इधर डाल दूं, NRT1 क्या हो जाएगा, NRT2 is V2 V2 the work done in terms of pressure and volume आ जाएगा P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1। यही बना ना, because PV is equal to NRT, so NRT1 is P1 V1, NRT2 is P2 V2, so P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1। This will be used in number of numericals, CV is R upon gamma minus 1। सो इसको भी याद रखना पड़ेगा, यू मतलब अभी डेरिवेशन में तो मैं लिख दूंगा, बट ये वैसे ही याद रखना है इस फॉर्मूला। देखो समझ में आया क्या किया, ये स्टेप क्लियर है सबको। dw इज इक्वल टू माइनस du, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस से dq 0 है, dq 0 है तो du प्लस dw 0 है, du प्लस dw 0 मींस du इज इक्वल टू माइनस dw। फिर हमने लिखा कि अगर टेम्परेचर चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट dt, तो dt du इज इक्वल टू माइनस ncv dt, वैल्यू पुट कर दे, dt की लिमिट्स लगा दी एंड सॉल्व कर दिया। कोई डाउट इसमें, देखो इसमें कोई डाउट, अदरवाइज आई विल राइट इट प्रॉपर्ली अगेन, बिकॉज़ टर्म 2 सब्जेक्टिव हुआ तो ये आ सकती है डेरिवेशन। क्लियर है सबको, so you can write work done in adiabatic process, work done in adiabatic process। Adiabatic process, सर वो du में -7 में आना है। यहाँ
formulas बोल रहे हैं। Work done in adiabatic process के। लास्ट फॉर्मूला देखो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अगर मैं बोलता हूँ स्टेट चेंज कर रही है P1 V1 से P2 V2 तक, तो वर्क डन ज्यादा किस में होगा, मोनोटॉमिक में डायटॉमिक में? गामा किसके लिए ज्यादा था? मोनोटॉमिक। मोनोटोमिक। मोनोटॉमिक के लिए गामा ज्यादा था, तो डिनोमिनेटर किसमें ज्यादा हुआ? मोनोटोन। मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक में गामा ज्यादा हुआ, मीन्स मोनोटॉमिक में वर्क डन कम हो जाएगा। उसको दूसरे वे में भी हमने इंटरप्रेट किया था कि मोनोटॉमिक की स्लोप ज्यादा है, तो उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा मोनोटॉमिक में। सो यहाँ से भी देख सकते हो, बिकॉज अगर गामा जितना बढ़ता जाएगा फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट, वर्क डन उतना कम होता जाएगा। यहाँ फॉर अ गिवन चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं गिवन चेंज इन टेम्परेचर कहूँ तो वर्क डन ज्यादा है किसमें, मोनो में डाया में। ये था गिवन चेंज इन स्टेट फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2। अगर मैं आपसे बोलता फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर चेंज, कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है मोनो का और डाया का, तो वर्क डन ज्यादा किसमें होगा, एडियाबैटिक में। फर्स्ट फॉर्मूला देखो जो लिखा है, NCV T1 माइनस T2। CV किसके लिए ज्यादा है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा किसमें थी, डाया। डाया में। तो डाया में अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा थी तो डाया में CV ज्यादा है। तो फॉर अ गिवन चेंज इन टेम्परेचर, वर्क डन इन डायटोमिक विल बी मोर देन वर्क डन इन मोनोटोमिक। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितने ज्यादा होंगे, CV की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और वर्क डन उतना ज्यादा होगा फॉर अ गिवन चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गामा। तो गामा की टर्म्स में सब कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और गामा 1 से बड़ा ही होता है फॉर गैसेस। So you have to remember, for gases, it's not a general statement, gases में CP/CV से बड़ा होता है। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो, CP ग्रेटर देन CV का रीजन भी लिख लो, इसके नीचे लिख लो नोट एक, for gases CP is always greater than CV, because when gas is heated at constant volume, energy is required for increasing the temperature only, whereas when gas is heated at constant pressure, whereas when gas is heated at constant pressure, energy is required both for increasing the temperature and doing pressure volume work. Energy is required for increasing the temperature and doing pressure volume work.
Therefore, work done is more. सर ये रिपीट कर दो, नेटवर्क चला गया था. When gas is heated at constant pressure, energy is required for increasing the temperature as well as doing pressure volume work. The energy required constant pressure will be more than energy required constant volume. Energy required at constant pressure will be more than energy required at constant volume. तो CPCV से बड़ा ही होगा, because CPCV तो कम से एक ही केस में क्या था, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है वो गैसेस में नहीं होती. हीट करने से गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इट विल नॉट रिड्यूस वॉल्यूम. एक्सपेंशन के केसेस नहीं है. अब ये हमने दो मतलब आज दो चीजों पे फोकस किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या है, एडियाबैटिक क्या है, एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या है, फिर उसको वर्क डन कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, उससे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं हम रिजल्ट्स को. पॉलीट्रॉपिक आएगा इसके बाद, उसको नेक्स्ट में शुरू करेंगे फ्राइडे को ऑफलाइन. नॉर्मल टाइम जो आपके यहाँ 6 से 7:30 फ्राइडे. इसका आज वाला पढ़ के देख लेना. इसमें कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे को मतलब आज वाले में या इससे पहले जो क्लास लगाई थी उसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे को फ्राइडे की क्लास में पहले वो क्लैरिफाई कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो इतना पढ़ के देख लो, नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर. आपको तो एंजॉय, हैप्पी दिवाली टू ऑल. Thank you, sir. Same to you. Thank you, sir. Happy Diwali, sir. Happy Diwali, sir. Bye, sir.